देहरादून स्थित भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में यू सर्क और एसोसिएशन फॉर प्लांट्स टेक्नोसॉमी ने 5 दिवसीय पादप नामकरण कोर्स के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया, जिसमें देश के 11 वैज्ञानिकों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया और डॉक्टर एस.के. सिंह द्वारा लिखित पुस्तिका टेरिडोफाइट्स ऑफ मेघालय पिक्टोरियल गाइड्स का विमोचन भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नॉमेनकल्चर रजिस्ट्रार डॉक्टर के.एन. गांधी, कोलकाता भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निदेशक डॉक्टर ए माओ और आईसीएफआरआई के महानिदेशक डॉक्टर अरुण सिंह रावत कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उपस्थित रहे एपीटीए उपाध्यक्ष डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, भारतीय प्राणी संस्थान के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गौरव शर्मा और कार्यालय अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. सिंह ने दीप प्रज्वलित कर पादप नामकरण कोर्स का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में 14 राज्यों से आए हुए 70 प्रोफेसर और शोधकर्ता और संस्था के सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं डॉक्टर भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण सिंह रावत ने अपने संबोधन में पादप नामकरण की महत्वता और उपयोगिता के बारे में जानकारी साझा की, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर ए माओ ने संस्था द्वारा पादप अनुसंधान की दिशा में किए गए कार्यों, पादप नामकरण की प्रक्रिया और व्यापार संबंधित जानकारी दी, जिसके बाद मुख्य वक्ता डॉक्टर के.एन. गांधी ने अपने संबोधन में सीजेन कोड के विषय में भी बताया। Myself is Dr. A. Mao, Director Botanical Survey of India. Today, we are organizing this nomenclature course for 1 week in Dehradun Botanical Survey of India. And this course is the 5th time we are organizing. We have organized in different parts of the country. So this time we have selected that in the northern part we have not done earlier. So for the benefit of the people from the north, we are conducting this nomenclature course or training workshop for 1 week. And this workshop is meant for this botanists or those who are interested in plant sciences, because in plant sciences or like the nomenclature mean the naming of plants and this thing, it is also has some international code or rules how it should be named, and that many people don't understand, especially from university, from colleges or from students. So for their benefit, we have brought our friend Dr. Kanchi Gandhi. He's from Harvard University, Boston, and he's well known or famous in the world for his knowledge on nomenclature, his authority. And he has come on his own, he has been so gracious to us that he has been coming voluntarily. We are only requesting him on our own, on his own expenses, like air ticket. He come. We give only for his local hospitality. So that is what he is sacrificing, and he is coming and imparting or sharing his knowledge to the participant on the basic rules and regulation or the international rules, because the law governing on this nomenclature or naming of plants or animals, all these things are there. So that is what in this 1 week he will be sharing on teaching the students or the participants how the procedure, what is the rules and like that. That is the thing we're doing, and this is very important in the context of today biodiversity. Today everybody is talking about biodiversity conservation and also like global warming, and that all these things are there. So that is why for the younger generation, this will be a moral boost, and also they will enlighten by this thing, and that will help that in their coming years in their education as well as in their research. That is why we have organized, and I'm sure they will learn a lot from me. You can So explain. now all people's request. Mm. आप क्या अपील करना चाहेंगे? So our request is that, you see, many people do not understand the importance of plants or the biodiversity. But you see, with the plant or biodiversity is so important in our life, daily life. You see, the ecosystem service, what we call it,
that depends on the biodiversity. So if plants and animals or the microbes get lost or extinct due to developmental activities or for not maintaining the sustainable development and just exploiting or like that, then we're going to face a lot of consequences. So my request to the people is that let us take care of our biodiversity or our environment so that we can have a better future, and also we can have a better future for our younger generation also. And also we all will enjoy the a good weather, a good climate, and also the clean air, clean water. All this thing depends on this our environment, and the biodiversity plays a very vital role in that. That's why my request to all the people, young and old, is that let us all take care of our environment and biodiversity, and let's conserve it for the future posterity. Thank you. मैं डॉक्टर एस के सिंह, विभागाध्यक्ष, नॉर्दर्न रीजनल सेंटर, देहरादून। आज से हम लोग नॉमेनक्लेचर कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। देखिए, ये सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, और पेड़ पौधों को जानने के लिए नाम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नाम नहीं जानते हैं तो हमारे लिए मुश्किल, जो स्पीसीज कंपोजिशन, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हमको स्पीसीज के बारे में नहीं पता होगा तो पता लगा कि एक स्थान पर, एक जगह की इकोलॉजी एक ही स्पीसीज से भर जाएगी, जो कि बहुत नकारात्मक होती है। इसलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज का नाम जानना बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि नाम जो है, नाम कोई भी होता है, लोकल भाषा में हर 10 किलोमीटर पे, हर 15 किलोमीटर पे नाम बदल जाते हैं। लेकिन एक बायोनॉमियल सिस्टम है जिसमें जीनस और स्पीसीज का नाम होता है, और बायोनॉमियल पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नेम होता है। उसी के लिए बहुत सारे रूल्स फ्रेम किए गए हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंजाई एंड एंजियोस्पर्म, जिसको कि हम लोग ICN के नाम से जानते हैं। और वो जो है, जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं, वो बॉटनिकल कांग्रेस हर 6 साल के इंटरवल पे होती है। वो विश्व का जो समुदाय है बॉटनिकल जगत का, वो सभी लोग मिल के डिसीजन लेते हैं, रूल बनाते हैं। उन रूल का जो है प्रयोग हम लोग सही से नाम रखने में करते हैं। इसलिए इतना नॉमेनक्लेचर इसलिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये स्पीसीज कौन सी है, इसका क्या प्रयोग है, तो हम लोग कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हम लोग मैंगो, आम खाते हैं, लेकिन अगर मैंगो का नाम हम बदल के जामुन कर दें तो क्या होगा? दिस विल क्रिएट ए मेस। वी कैन नॉट सक्सेसफुली यूटिलाइज दैट, वी कैन नॉट ईट इट, वी कैन नॉट गेट दैट टेस्ट। ऐसे ही तमाम तरह के औषधीय पौधे हैं, अगर उनका नाम सही से नहीं होगा तो मतलब चीज़ें वर्सन हो जाएंगी और लोग फायदे की जगह नुकसान में जाएंगे। क्योंकि आप जानते होंगे बहुत सारी स्पीसीज पॉइजनस भी हैं, जहरीली भी हैं। अगर उनका नाम जो है स्वीट स्पीसीज से रख दिया जाएगा, कितना प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी कभी केस ऐसे भी आते हैं कि जिसमें कि बच्चों को पता नहीं होता, उसको खा लेते, उसके बाद में बीमार हो जाते हैं। हाँ, वो इसीलिए कि उनको जैसे पेड़ पौधों के बारे में ये जानकारी दी गई है कि ये फलाना पौधा जहरीला है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि ये पौधा कौन सा है। तो इसीलिए प्लांट को पहचानना और उसको सही नाम देना ही बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसलिए उतना ही इम्पोर्टेंट है नॉमेनक्लेचर जितना कि हमारा जीवन। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने जीवन में, जो पेड़ पौधों से हम लोगों को मिलती हैं। इसमें आम लोगों का कितना फायदा होगा, ये पेड़ पौधे पहचानने से उसकी औषधि का कितना फायदा मिल सकता है? यह तो इनवैल्यूएबल चीज है। इसकी तो कोई मतलब मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस बेनिफिट। रीजन, यू सी, ऑक्सीजन सिलेंडर we purchased in corona time
10,000, 20,000 per cylinder. But every day a tree gives more than 100 cylinder. So how many trees and how much diversity is there? We can harvest. We are harvesting everything. आप ऑक्सीजन का जहाँ कमी हो जाए, देखिए आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको तुरंत सांस लें, और 1-2 सेकंड के लिए अगर वह एटमॉस्फेयर से शुद्ध ऑक्सीजन निकल जाए, एवरीथिंग विल बी ओवर। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। इसमें लगता है कि लोगों को जागरूकता की अभी कमी है। जागरूकता की बहुत जरूरत है, इसलिए आप लोग जो है ये देवभूमि जनसंचार जो न्यूज है, ये अपना महत्वपूर्ण रोल कर सकता है। इस पर रेगुलरली फीचर्ड प्रोग्राम कर सकते हैं लोगों में। जेटा न्यूज है, तो ये सभी रेगुलरली अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी लोगों में अवेयरनेस फैलाना है। क्योंकि देखिए जो ये सभी चीजें सब इलिसिट और सब बहुत क्वालिफाइड और प्रोफेशनल लोगों के बीच में रहती, कॉमन लोगों के बीच में नहीं जाती है। तो मीडिया ही ऐसा माध्यम है कि जो मतलब जनमानस तक हम लोगों की बात पहुंचा सकता है। मेरा नाम संजय उनियाल है। मैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में काम करता हूं। मैं मेरा जो वर्क है वो कंप्यूटर का है, जिसमें डिजिटाइजेशन, ये जो हम इस टाइम जहां खड़े हैं, ये हमारा इस कार्यालय का हर्बेरियम, जिसको पादपालय बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत 1959 से शुरू हो गई थी, जिसमें लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने अपनी दुर्गम स्थानों की विजिट करके टूर बना के वहाँ पे गए हैं। वहाँ से जो प्लांट लाते हैं, आप हर्बेरियम इसमें देखेंगे, हमारे 1940, 39, 1925 तक के प्लांट हमारे यहाँ पे हर्बेरियम के अंदर संरक्षित करके गए हैं, जिससे कि बच्चे आने वाले समय में आते हैं, यहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हैं, तो वो इनकी स्टडी करते हैं कि ये प्लांट, अगर सपोज कोई प्लांट लद्दाख का है, तो वो लद्दाख देखने नहीं जाएगा, वो यहाँ पे जो हमारा ज्यूरिडिक्शन है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड पूरा ये शामिल है। पार्शली हमारा दिल्ली को भी हम करते हैं, और इलाहाबाद था हमारा यूपी का, वो अब इलाहाबाद सर्किल में चला गया है। तो अब ये जो बच्चे आते हैं यहाँ पे स्टडी करते हैं। हम एक नोडल एजेंसी हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्लांट आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो उस प्लांट को जब तक हमारे यहाँ से सर्टिफाई नहीं होगा कि ये यही प्लांट है, तो तब तक वो उस पर वो माना नहीं जाएगा।